حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ اللہ کے بندے نماز کے لیے، آ اللہ کے بندے کامیابی کے لیے۔ نہیں لے بہت تھک گیا ہوں، بدن چور چور ہو گیا، پہلے غسل کر لیں گے، نہائیں گے، آرام کریں گے، بعد میں جائیں گے نماز۔ ارے سفر سے تھکا بدن لے کو نماز کو نہیں آتے ہمیں، کٹا پھٹا جسم لے کو صحابہ گھروں کو جانے والے میدان میں کود پڑے جی۔ یہ ہوتا جی شجاعت، یہ ہوتی جی جذبہ، یہ ہوتا جی نبی کی اطاعت ہے کیا ہمارے اندر؟ وہ صہیب رومی ایسے مالدار صحابی جب پہنچے مدینہ، نبی علیہ السلام ان کی حالت دیکھ کر بولے صہیب یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اللہ کے دین کے لیے میری جان قربان، میری دولت قربان، میرا سب کچھ قربان۔ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ صہیب کے ہاتھ میں پکڑ لیے، ابھی نبی کے ہاتھ سے صہیب کا ہاتھ نکلا نہیں تھا، آسمان والا میرا اللہ یہ آیت نازل کیا، سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ اسلام میں امت محمدیہ میں یہ پہلی خاتون تھی جس کے خون سے اس زمین کو رنگ کر شہید کر دیا گیا، سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار بے ہوش پڑے ہیں، عمار ان کے والد یاسر بے ہوش کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا وہ چھوٹے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرنا، اللہ تم جیسوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، صبر کرنا۔ تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے باکمال ہے، ہر عیبوں سے پاک ہے، اور بڑی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ہم انسانوں جناتوں تو کیا، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، فضا میں اڑنے والے تمام مخلوقات کی جانیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جیسا چاہتا ہے انسانوں کو راہ راست پر یا گمراہی پر کر دیتا ہے۔ اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں، چاہے ہدایت پہ رکھے چاہے گمراہی سے موڑ دے۔ اس اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس دھرتی پر راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر، مسلمان ماں باپ کے کوکھ سے جنم لے کر امت محمدیہ جیسی ایک عظیم امت میں شامل ہو کر آج ہم اللہ کی عبادت بجا لانے اس کے گھر میں خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے اس کے گھر میں جمع ہو کر جمعہ کا حقیقی ثواب حاصل کر رہے ہیں، اس کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے عظیم احسانات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ان عظیم احسانات میں ہمارے نبی کا ہم پر نبی بنا کر مبعوث کیا جانا اور ان کی رشد و ہدایت، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات ہمارے لیے اللہ کی عظیم نعمت۔ اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے صحابہ پر اللہ کی ان گنت رحمتیں، برکتیں ان پر نازل ہو، اور خصوصاً ہمارے نبی پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام کے لیے صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ مجھے ریاکاری سے بچاتے ہوئے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کی 30 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہ جاتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان ٹوٹ پڑ جائے، پہاڑ ریزہ ریز ہو جائیں، کوئی دنیا کا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے، اللہ کی وحدانیت میں کفر نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، ایک اللہ پر ایمان لا کر اس ایمان پر ثابت قدم ڈٹے رہ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا،
वला तहज़नु, इनको डरने की ज़रूरत नहीं, इनको गम करने की ज़रूरत नहीं। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, ऐ मेरे नबी इनको खुशखबरी दे दो ऐसे जन्नत की जिसका वादा इनसे किया जा रहा है। बेहतरीन जन्नत की खुशखबरी किनके लिए? जो एक अल्लाह का नारा बुलंद करते हुए ईमान बिल्लाह पर डटे रह जाते हैं क़यामत की सुबह तक उम्मत मुहम्मदिया में। उनको डरने की ज़रूरत नहीं, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इन पर नाजिल होते हैं, अल्लाह की रहमतें इन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह इनको जन्नत का वादा किया है। ऐसा ईमान पर डटे रहने वाले वो सहाबा थे जो हमारे नबी को अल्लाह ताला एक बेहतरीन जमात की शक्ल में दिया था। क्या बेहतरीन जमात थी? सहाबा की वो टीम, वो सहाबा की ईमान की हरारत। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया दुनिया में आए, किसी नबी को वैसी टीम अल्लाह नहीं दिया जैसे हमारे नबी को सहाबा जैसी टीम, ईमान वाली, अखलाक वाली, हिम्मत वाली, शुजात वाली, इंसाफ वाली, मामलात में पैवर्दा रहने वाली, इंफाक फी सबीलिल्लाह में पहल रहने वाली, शुजात वाली, बहादुरी वाली, हर मामले में नंबर 1 ऐसी टीम अल्लाह ताला हमारे नबी को दिया। और उस टीम को हम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नाम से जानते हैं, सहाबा व सहाबियात के नाम से जानते हैं। इनकी जिंदगियों का एक खुतबा जुमा में मैं क्या बयान करूंगा? एक खुतबा जुमा में सारा महीना इनकी सीरत के लिए नाकाफी है। सहाबा की सीरत इतना आप समझ ले एक जुमले में, इनकी जिंदगी की कुर्बानियों से अर्श पर मुस्तवी रहने वाला मेरा मालिकुल मुल्क इतना खुश हो गया, आसमान से इनके लिए टाइटल नाजिल किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये रब से राजी हो गए। ये टाइटल किसी को मिलना मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइटल है। ये अल्लाह किसी से राजी हो जाए ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह हमसे भी राजी हो सकता है। कब? जब हम सहाबा जैसा ईमान लाएं, सहाबा जैसी कुर्बानियां दे, सहाबा जैसा वलवला अपने अंदर रखे, अल्लाह हमसे भी राजी हो सकता है। हमारे अंदर है वो ईमान, हमारे अंदर है वो जज्बा। अरे बिरयानियां खा को बेरशीटा ओढ़ले सोने वाले हमारे अंदर कहां से जी आता, कहां से जी हमारे अंदर आता? सहाबा जैसा ना जोश, ना जज्बा, ना दावत, ना अल्लाह ताला की वहदानियत, ना ईमान पर डटे रहने की कुव्वत, ना हिम्मत, ना शुजात, ना बहादुरी। डरपुक के, बुज़दिला एक नंबर के। हिम्मत पैदा करो जी, ये जान मेरे रब की दी हुई है, एक दिन निकलना है, जैसे भी निकलना है। बुज़दिली की मौत मरने से शेर दिल बनकर शहादत की मौत मरना इस जहां में हमारे लिए बेहतर है। और शहादत इसी का नाम नहीं कि जाकर लड़ो, तलवारा उठाओ, बंदूक लो, नहीं। इस्लाम पर डटे रह जाओ, चाहे इस्लाम पर डटे रहते हुए, ईमान पर चलते हुए, तौहीद को फैलाते हुए, शिर्क को मिटाते हुए, दुश्मनों के हाथों से मार खाते खाते क्यों ना मर जाओ, इसे कहते हैं शहादत की मौत, ईमान की मौत। ऐसे थे सहाबाए किराम। ना उनके पास हथियार था ढंग से, ना खाने के लिए खाना था, ना रहने के लिए बिल्डिंगां थे, ना घूमने के लिए बड़े बड़े गाड़ियां थे, नहीं। ईमान की ताकत, वो ताकत थी, अल्लाह अकबर। क़यामत की सुबह तक वो हरारत, वो ताकत, वो शुजात किसी माई के लाल में पैदा होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला इनके बहादुरी के तारीफ किया जी, कुरान में अल्लाह ताला तारीफ किया इनके बहादुरी के। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मुख्तसर वक्त होता है जुमा का, किन की सीरत की कौन कौन सी झलकियाँ आपके सामने रखी जाए ना काफ़ी है। ग़ज़वा उहद का मामला है। ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी नसीहत करते, वसीयत करते, कहते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कि इस पहाड़ पर बैठना, 70 सहाबा को लेके क्या भी हो जाए नीचे नहीं उतरना। गलती हो गई उनसे, जंग जीते समझ के वो लोग अपनी जगह छोड़ दिए, नीचे उतर आए। जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई। पीछे से अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, खालिद बिन वलीद, अबू सुफियान लश्कर लेकर उहद पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर फिर अटैक कर दिए। कौन से सहाबा, ज़रा मामले को, सिचुएशन को समझो। वो सहाबा अभी अभी जंग लड़के अपने घरों की जानिब जीते समझ के जा रहे हैं,
कैसा जा रहे हैं? किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी के सीने में तीर लगा है, किसी को बर्छी लगी है, किसी को नेजा चुभा है, किसी के खंजर से बदन को चीरा गया है। अपने जख्मी बदन लेकर अपने घरों की जानिब मरहम पट्टी कराने लंगड़ते लंगड़ते हलते डुलते अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। अचानक दुश्मन हमला कर देता है पीछे से। ऐलान करने वाले नबी ऐलान करते हैं, मेरे सहाबा तलवार उठा लो, दुश्मनों ने पीछे से हमला कर दिया है, आओ मैदान की जानिब, आओ इस्लाम की जानिब। अल्लाहु अकबर। क्या जज्बा था जी वो सहाबा का। ऐसे कटे फटे जिस्म लेकर, ऐसे खून टपकता हुआ बदन लेकर सहाबा ये नहीं बोले क्या जी अल्लाह के नबी अभी जंगा लड़को कटा पटा जिस्म लेको मरहम पट्टी करने, जख्मों को सिलने घर की जानिब जारी, ऐसे बदन से भी हमने मैदान में बुलाती क्या? नहीं बोले, एक हरफ नहीं बोले, फिर तलवार लिए एलाए के लिए मैदान में कूद पड़े। है क्या जी ये जज्बा हमारे अंदर? हमें जर्रा सफर से लौटती, हैदराबाद को जाकर आती, महबूब नगर को जाकर आती, इधर उधर जाकर तो हमारा बदन इतना थक जाता, अजान सुनाई देते रहता हम ना, हैया अला सला हैया अल फला, आ अल्लाह के बंदे नमाज के लिए, आ अल्लाह के बंदे कामयाबी के लिए। नहीं ले, बहुत थक गया हूं, बदन चूर चूर हो गया, पहले गुस्ल कर लेंगे, नहाएंगे, आराम करेंगे, बाद में जाएंगे नमाज। अरे सफर से थका बदन लेको नमाज को नहीं आते हमें, कटा फटा जिस्म लेको सहाबा घरों को जाने वाले मैदान में कूद पड़े जी। ये होता जी शुजात, ये होती जी जज्बा, ये होता जी नबी की इताअत। है क्या हमारे अंदर? वो है हमारे अंदर। नमाजों के लिए नींद की कुर्बानी नहीं देते हमें, अपने बदन के थके हुए बदन की कुर्बानी नहीं देते हमें, जान की बाजी क्या जी लगेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम की वो टीम थी जो अल्लाह ताला दिया था। माल कुर्बानी करने में बोलो, जिस्म की अज़ियतें सहने में बोलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में बोलो, इंसाफ करने में बोलो, बहादुरी दिखाने में बोलो, मेहमान नवाजी करने में बोलो, कौन सी मिसाल लेंगे आप सहाबा के मामले में? हर मामले में नंबर 1। मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। अबू सलमा बीवी को एक सवारी पर बिठाए, छोटा बच्चा 2 साल का। पता चला किनको? बनु मुगैरा, इनके अबू सलमा के ससुराल वाले, उन्होंने उम्मे सलमा के घराने वाले बनु मुगैरा। पता चला मेरे जवाई बेटी को नवासे को लेकर जा रही गते आए। अरे अबू सलमा कहाँ जा रही जी? जाओ जी, हमारी बेटी को नवासे देखो, तुम्हें जाओ। पकड़ लिए, जाने नहीं दिए। ठीक है, ले लो तुम्हारी बेटी, ले लो तुम्हारे नवासे को। मक्के वाले आए, ऊंट पकड़ लिए, ये सवारी हमारी दो। और खुरैश आए, ये दौलत यहां कमाए सो दो। अरे क्या होना तुम ना, सवारी होना लो, दौलत होना लो। ऐसे एक नहीं, सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु हिजरत मदीना निकले हैं, सारी दौलत मक्के वालों ने निकाल लिया, एक झटके में कुर्बान कर दिए। अबू सलमा हिजरत कर रहे हैं, मक्के वालों ने पकड़कर दौलत का मुतालबा किया, एक झटके में सारी दौलत कुर्बान कर दिए। अब्दुल उज्जा जब इस्लाम लाए इन्हों, अल्लाह के नबी इनका नाम अब्दुल्ला रखे। अब्दुल्ला ऐसे मालदार सहाबी मक्के से मदीने की जानिब हिजरत कर रहे हैं, मक्के वाले इनको पकड़ लिए, निकालो, ले लो जी, दौलत क्या जी हो ना, ले लो जी। सारी दौलत एक झटके में कुर्बान कर दिए। ये पहले साहबी हैं जिनको जवानी में बराहना कर दिया गया, इनके कपड़े निकाल लिए गए। इनकी अम्मा के पास आए, माँ देखी बेटा नंगा, बेटे क्या हुआ? अम्मा एक चादर है तो दे। माँ चादर का टुकड़ा, उसके 2 टुकड़े कर को, एक नीचे एक ऊपर, बांध लेने के वास्ते वो इतनी बड़ी नहीं चादर, छोटी चादर, बड़ी मुश्किल से ऐसा ले को, बबूल का कांटा, ऊपर एक टाका नीचे एक टाका। वो 2 चादरों में नबी के पास आए। नबी हजरत अब्दुल्ला की हालत देखकर आंखों में अश्कबार। अब्दुल्ला क्या हो गया? ऐ अल्लाह के नबी, इस्लाम के लिए सारी दौलत कुर्बान करके आया हूं, ईमान की दौलत बचा के आया हूं, ईमान की दौलत बचा के आया हूं। अल्लाह के नबी उनका लक़ब रख दिए जुल्बजादैन, अब्दुल्ला जुल्बजादैन। जुल्बजादैन बोले तो 2 चादर के टुकड़े वाले, 2 चादर के टुकड़े वाले। एक जंग में शहीद होने, जंग लड़ने गए, बीमार पड़ गए, बुखार आया, रास्ते में इनका इंतकाल हुआ। नबी बोले ये जंग के लिए निकले थे, अल्लाह इनको शहादत की मौत दिया। भले जंग नहीं लड़े,
रास्ते में जंग के लिए निकले थे, अल्लाह ताला इनको शहादत का दर्जा दिया। अब्दुल्ला जुल्बजादैन, सुहेब रूमी, हजरत मुसअब बिन उमैर, हजरत अबू सलमा, ये तमाम सहाबा एक एक झटके में अपनी सारी दुनिया की कमाई हुई पूंजी मक्के वालों के हवाले करके निकलने वाले। सुहेब रूमी ऐसे मालदार सहाबी जब पहुंचे मदीना, नबी अलैहिस्सलाम इनकी हालत देखकर बोले, सुहेब ये क्या है? अल्लाह के नबी, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया, सब कुछ लुटा के आया हूं। अल्लाह के नबी, अल्लाह के दीन के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरी दौलत कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान। अल्लाह के नबी अपना हाथ सुहेब के हाथ में पकड़ लिए। अभी नबी के हाथ से सुहेब का हाथ निकला नहीं था, आसमान वाला मेरा अल्लाह ये आयत नाजिल किया, सूरह तौबा की 111 नंबर की आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक वो परवरदिगार मोमिनों को इनके जानों के बदले, इनके मालों के बदले जन्नत के लिए खरीद लिया है। ऐ मेरे नबी, ये जन्नत के इवज अपनी दुनिया का सौदा करके आए, बशारत सुना दो इनको जन्नत की। इसे बोलती कुर्बानी, इसे बोलती कुर्बानी। आज कोसा के करनूल में बड़ा जलसा हो रहा थे, देने वाले देव भाई का तो पहले चिल्लर देखती हमें, मेरी तरफ से यत्ताज भाई देने का, देखो मैं तो नहीं दे सकता, मेरा बहुत टाइट चल रहा। इस्लाम के लिए, एक इस्लाम के प्रोग्राम के लिए, एक मस्जिद के चंदे के लिए, एक मदरसे के यतीम खाने के लिए, बेवाओं के फंड के लिए, गरीब बच्ची की शादी के लिए आज हमारे पास वो दिल नहीं, वो दिल नहीं, वो कुर्बानी का जज्बा नहीं। जिस्म की अजियतें, सहाबा ने जो कुर्बानियां दी, जिस्म की अजियतें। जुन्नेरा मुल्क रोम से आने वाली एक कनीज़ा, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की कनीज़ा जुन्नैरा रूमिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, अभी उमर इस्लाम नहीं लाए हैं, उनकी कनीज़ा है जुनैरा, ये भी इस्लाम कबूल कर ली। पता चला मक्के वालों को कि जुनैरा रूमिया जो कनीज़ा है, खादिमा है, इसने इस्लाम लाया, अजियतें दी है उसे, इतना मारे अबू जहल ने इसकी आंखें फोड़ दिया। अबू जहल जुनैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आंखें फोड़ दिया। अंधी जुनैरा जिसकी आंखों के डल्ले फूट चुके हैं, जाती थी मक्के के गलियों में, मक्के वाले ताने मारते थे, है जुनैरा तूने लात मनात हुबल उज्जा को छोड़ा, हमारे बुतों ने तेरी आंखों को फोड़ दिया, हमारे बुतों ने तेरी आंखें छीन लिया। वो कहती थी मेरे अल्लाह की आजमाइश है ये, किसी लात मनात हुबल उज्जा ने मेरी आंखें नहीं ली, मेरे अल्लाह की आजमाइश में मेरी आंखें गई हैं। अगर मेरा अल्लाह चाहे इन फूटी हुई आंखों को बना सकता है, इन नाबीना को बीना बना सकता है। अल्लाह के नबी को जब ये बात पता चली, अल्लाह के नबी ने जुनैरा के लिए दुआ की। जुनैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा रातों को उठकर अल्लाह को मांगा करती थी, अल्लाह ये कहते हैं मेरी आंखों को हुबल मनात उज्जा ने ली है, अल्लाह मैं इनके सामने ये मोजज़ा, ये करिश्मा बनना चाहती हूं कि मेरे मौला मुझे मालूम है मेरी आंखें तेरी आजमाइश में गई हैं, अल्लाह तेरी कुदरत से मेरी बीनाई लौटा दे। अल्लाह ने जुनैरा की बीनाई लौटा दी। जो आंखें फूट चुकी थी अल्लाह ने वो आंखें बना दी, जो नाबीना बन चुकी थी अल्लाह वो बसारत लौटा दी जुनैरा की। जुनैरा की बीनाई देखकर मक्के वाले हैरान, मक्के वाले परेशान। मेरे भाइयों, इसे बोलती हूं कुर्बानी। हजरत सुमैया वालिदा, यासिर वालिद, बेटा अम्मार, छोटा खानदान ये, अम्मार बेटा, सुमैया अम्मा, यासिर अब्बा। हजरत यासिर के बेटे अम्मार, सुमैया के बेटे अम्मार, ये छोटे खानदान इस्लाम कबूल करने के बाद जो परेशानियों का शिकार बने। अबू जहल को पता चला ये छोटा घराना इस्लाम लाया, लाकर खजूर के 2 तनों से अम्मार और यासिर बाप बेटे को बांध दिया, खूब मारने लगा। इतना मारा पीठ की चमड़ी मार मार कर छलनी कर दिया। सुमैया को जमीन पर लिटा दिया, 2 हाथ 2 पैर 4 ताकतवर ऊंटों के मुखालिफत सिमत में बांधकर खींचने लगाया। मार खाते खाते अम्मार और यासिर बेहोश हो गए। हुबल का बुत जोब में से लेकर अबू जहल
सुमैया को कहता था हुबल को खुदा मान ले तुझे छोड़ दूंगा, नहीं मानूंगी, मेरी जान कुर्बान कर दूंगी, मैं नहीं मानूंगी, मेरा अल्लाह एक है, एक अल्लाह पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, हुबल को रब नहीं कहूंगी, लात मनात को रब नहीं कहूंगी। मुकामे बाह में नेज़ा लेकर मार दिया अबू जहल। इस्लाम में उम्मत मोहम्मदिया में ये पहली खातून थी जिसके खून से इस जमीन को रंग कर शहीद कर दिया गया, सुमैया को शहीद कर दिया गया। हजरत अम्मार बेहोश पड़े हैं, अम्मार उनके वालिद यासिर बेहोश खड़े हैं। अल्लाह के नबी को पता चला वो छोटे खानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। अल्लाह के नबी ने इशारा करके कहा इस्बिरु या आला यासिर फ़इन्न मौइदुकुमुल जन्नह, अय आले यासिर तुम सबर करना, अल्लाह तुम जैसों के लिए जन्नत का वादा किया है, सबर करना। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये इस्लाम में आए, एक ग़ुलाम हैं हबशा से आने वाले, इस्लाम में आए। इनका मालिक उमैया बिन खल्फ इतनी अजियत देता था, इतना मारता था, इनके पैरों में रस्सी बांध कर तपती रेत पर अरबस्तान की जानवरों की तरह घसीटने लगाता था। इनके सीने पर पत्थर रखकर पैर रखकर खड़ा हो जाता था और कहता था उमैया छोड़ दे तेरे नबी को, तेरे अल्लाह को, मैं तुझे छोड़ूंगा। अहद 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 का नारा लगाने वाले बिलाल, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें नाजिल हो इन सहाबा पर। मुझे बोलने में आसान लग रहा होगा, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसे गेस करके देखो, अपनी जिंदगी में जरा फीलिंग करके देखो। ये मामूली कुर्बानियां नहीं है सहाबा की, उतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां वो सहाबा दिए हैं, बल्कि आज इस्लाम हमारे तक अल्लाह ताला के फजलो करम से आके पहुंचा है। हम बड़ी आसानी से इस्लाम पर चल रहे हैं। उस जमाने में नमाज पढ़ना भी मुश्किल था। अगर नमाज पढ़ता हुआ कोई सहाबी पकड़ा जाता, उनके गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी गोबर की पोटली लाकर डाल देते थे। अत्तहियात में बैठे रहते तो गर्दन में रुमाल डाल के फांसी का फंदा मुरोड़ते थे। मस्जिद को जा रहा इन्हें चलने को दारुल अरकम की जानिब के रास्तों में कांटे बिछाते थे। दावत इल्लाह का पैगाम, एक अल्लाह का ऐलान जिस गली में होता था, पत्थरों से जानवरों की तरह मारा करते थे नबी को और सहाबा को। ये सुनने में आपको आसान लग रहा होगा, मेरे भाइयों ये मामूली कुर्बानियां नहीं है नबी की और सहाबा की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा, हजरते खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा, 4 जवान बेटे ग़ज़वा खैबर के मौके पर अपने बेटों को खड़ा करके वसीयत करती, नसीहत करती, माँ, बूढ़ी माँ, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे अब्बा की ज़ौजियत में अल्लाह की कसम कभी खयानत नहीं की। तुम्हारे बाप की वफादार बीवी रही हूँ मैं, अल्लाह की वफादार बंदी हूँ मैं, उसकी तौहीद में मैंने कभी शिरक नहीं किया, तुम्हारे बाप की ज़ौजियत में कभी बेवफाई नहीं की। मेरे बच्चों, आज इस्लाम के लिए तुम्हारी जान की बाजी की जरूरत है। ये मत सोचना कि हम हमारी बूढ़ी माँ का सहारा बनेंगे, अल्लाह मेरा सहारा है। मेरे बच्चों, इस्लाम के लिए अगर तुम्हारी जान भी बाजी लगानी पड़े, शहीद हो जाना, मेरी परवाह ना करना। 4 बेटे ग़ज़वा खैबर में शहीद हो गए। एक एक आते थे, इतला देते थे, खनसा तेरा बड़ा बेटा गुजर गया, खनसा तेरा दूसरा बेटा गुजर गया, खनसा तेरा तीसरा बेटा मारा गया। 4 की शहादत सुनकर खनसा बूढ़ी माँ के जबान से क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादातिहिम। अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बच्चों की शहादत से मेरा मुकाम तूने बड़ा कर दिया, मेरा मुकाम तूने बड़ा कर दिया। ये होती है माँ, ये होती है कुर्बानी, ये होती है जज्बा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेहमान नवाजी खाने के मामले में अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए। नबी अपने सारे घरों को पूछा भेजे, जाओ क्या तो है क्या खाने को। सारे घर में नबी के जा रहे सहाबी पूछ के आ रहे, अल्लाह के नबी आपके घर में पीने के लिए पानी के सिवा खाने के लिए खजूर का टुकड़ा भी नहीं है। किसके घर में? कायनात के पैगंबर के घर में, हमारे नबी के घर में। एक घर में नहीं, सारे बीवियों के घर से एक जवाब आता है,
پینے کے لیے پانی کے سوا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے. ہمارے گھر میں ایک سال کا اناج اللہ تعالیٰ دیا, ایک سال کا اناج پڑے رہتا ہمارے گھر میں. اما عائشہ بولتی اللہ کی قسم 2 مہینے کے چاند ہم دیکھ لیتے تھے آسمان میں. نبی کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا. کیسے جلتا؟ اگر گھر میں نبی کے راشن ہوگا تو نہ چولہا جلے گا. راشن نہیں ہے, چولہا کہاں سے جلے گا؟ یہ نبی کے گھر کی حالت. نبی افسوس میں بیٹھ گئے. ایک مہمان کو ایک وقت کا میں کھانا بھی نہیں کھلا سک رہا ہوں. ایک صحابی بولے اللہ کے نبی میرے کو دیجیے, میرے حوالے کیجئے, میں کھلا لے بلا لے. ان کو بھی معلوم نہیں ان کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں. بلا لے گئے. بیوی کو پوچھے اتنا ہے جی, کئی کو بلا لے کہی جی اتنا ہے جی. میں کھائی تو تم نہ نہیں, تمہیں کھائے تو میرے کو نہیں, ہم دونوں کھائے تو بچوں کو نہیں, بچے کھائے تو ہمارے کو نہیں. ایک کام کرو, بچوں کو بہلا پھسلا کو سلا دو, میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا ہوں, بتی گل کر دو. ایکٹنگ کر رہے ہیں. میں میزبان کیا سمجھ رہی کہ وہ بھی میرا مہمان کھا رہا ہے. اندھیرے میں میزبان کو نہیں دکھ رہا مہمان کی حالت, لیکن میرے عرش پر مستوی رہنے والے اللہ کو سب کچھ دکھ رہا. ابو طلحہ کیا جذبے سے مہمان رسول کو کھلا رہا. جب وہ تہجد کے وقت لے کر آئے کھلا پلا کے, اللہ یہ آیت نازل کیا وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ سنو, وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو لوگ اپنے آپ پر ترجیح دے کر دوسروں کو اپنا منہ کا نوالا کھلاتے ہیں, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی تعریف کیا, ان کے اخلاق. مہمان نوازی میں نمبر 1 صحابہ اکرام. اتنا ہی نہیں, انصاف کرنے میں انصاف کا معاملہ ہے تو بھی نمبر 1 صحابہ. حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس فتح کرنے نکل رہے ہیں. پرانے کپڑے, کن کے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کے کپڑے پھٹے پرانے, پیون لگے ہوئے, تھگلے لگے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بولے اے امیر المومنین, ایسے پھٹے پرانے حالت میں ہمارا مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین اگر ایسی حالت میں آپ جائیں گے ہماری عزت کا کیا؟ یہ لو بڑا زبردست لباس, یہ ترکی گھوڑا, یہ شاندار پیوس مجھے نہیں چاہیے. میں اس بستی میں جا رہا ہوں جو نبیوں کی بستی ہے, نبیوں کی خستہ سے خستہ حالت وہاں رہی ہے. میں نبیوں کا ماننے والا, میں کیوں بڑی شان و شوکت سے جاؤں؟ ایک گھوڑا, غلام اور ان کے بیچ میں اسلم غلام, ان کے بیچ میں باری باری تقسیم. 1 کلومیٹر تمہیں اوپر میں نیچے, اور 1 کلومیٹر میں تمہیں نیچے میں اوپر. جب بیت المقدس میں انٹری ہونے کا وقت آیا, امیر المومنین نیچے نکیل پکڑ کر چلنے کی باری تھی, اسلم کے اوپر بیٹھ کر امیر المومنین کے جیسے جانے کی باری تھی. غلام کہتے ہیں اے امیر المومنین میری باری, میں تم پر وقف کرتا ہوں, میں نیچے آ جاتا ہوں, تمہیں اوپر آ جاؤ. نہیں, یہ بات میرے اللہ کو پسند نہیں. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تم اوپر رہو, میں نیچے رہوں. پیدل چلتے چلتے بیت المقدس میں داخل ہوئے. یہ ادا یہ بیت المقدس کے یہودیوں کو اتنی بھائی, انصاف کے پیکر امیر المومنین عمر بن خطاب کو بغیر جنگ کے بیت المقدس ان کے حوالے کر دیے, بغیر جنگ کے, بغیر کسی جنگ. ان کا انصاف, اللہ کا ڈر صحابہ کے دلوں میں, خشیت, خوف. اللہ اکبر. غامدیہ نام کی ایک صحابیہ سے زنا ہوا. آتے اللہ کے نبی سے بولتے مجھے پاک کیجئے, میرے سے زنا ہو گیا. اللہ سے توبہ کرو جاؤ. نہیں, ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں جو گناہ ہوتا وہ میرے سے ہوا, اللہ سے توبہ کرو جاؤ. اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤ. 9 مہینے 1 سال کے قریب بچے کو لے کر آئے. جاؤ دودھ پلا کے روٹی کھانے کے قابل بنا کے لاؤ. 2 سال دودھ پلا کے 3 سال کے بعد 1 سال حمل وضع, 2 سال دودھ چھڑانے کی مدت, 3 سال. اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. ٹھیک ہے, بچے کو دیجئے. جاؤ ان کو مدینے کے باہر زمین میں گاڑ کے پتھروں سے اس وقت تک مارو جب تک ان کی جان نہ چلی جائے. مر گئی. غامدیہ کیا ہوا؟ شہید ہو گئی, مر گئی.
बुला ले कराओ, मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूं। उमर बिन खत्ताब हाथ पकड़ लिए, नहीं, ऐसी जानिया औरत की नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे? मत पढ़ाइए, ये गंदी औरत है। नहीं है, अरे उमर तुम नहीं जानते गामिदिया ने कितनी जामे तौबा की है। मदीने के 70 जहन्नमियों को गामिदिया के तौबा के 70 टुकड़े करके मेरा अल्लाह 70 जहन्नमियों में अगर तकसीम भी कर दे, गामिदिया के तौबा का एक टुकड़ा पाकर वो 70 जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। इतनी अजीम तौबा उसने की है। मालिक बिन माइज अल अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी जिना हुआ, उनको भी संसार कर दिया गया। खालिद बिन वलीद बोले, छी कौसे गंदे इंसान का खून है, अय खालिद ऐसे मत कहो, मालिक की तौबा को मेरे अल्लाह ने कबूल कर ली है, इसकी मगफिरत अल्लाह ताला ने अभी कर दी है। तौबा करने में, अल्लाह से डरने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का पैकर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, इस्लाम की मोहब्बत में वो अपने बाप को भी नहीं देखते थे, बेटे को भी नहीं देखते थे। ग़ज़वा बदर है, अबू उबैदा बिन जर्राह कोनिनो अशरे मुबशरा सहाबी। अल्लाह के नबी कहते हैं हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। अबू उबैदा बिन जर्राह है। अबू उबैदा बिन जर्राह को ग़ज़वा बदर में एक शख्स तलवार लेके अटैक किया, पीछे हटे, और एक बार अटैक, पीछे हटे, सामने बढ़कर एक कीचक वार में उनकी गर्दन उड़ा डाले। कौन थे इनो? सगे बाप। अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथों सगे बाप एक झटके में बाप की गर्दन उड़ा दिए, क्योंकि वो काफिर था। अबू उबैदा बिन जर्राह मोमिन। अल्लाह ने कुरान की वो आयत नाजिल की, जो लोग अल्लाह की इस्लाम के खातिर अपने रिश्तेदारों की भी परवाह नहीं करते, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राजी करने के लिए लड़ते हैं, अल्लाह इनके लिए जन्नत का वादा किया है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान कौन? इन्हों अबू बकर के बेटे। मेरे अब्बा इस्लाम लाने से पहले जंग ओहद में 2 मरतबा मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे। मेरे अब्बा ना समझ को मैं पीछे हट गया। अबू बकर सुन को क्या बोले? मेरे बेटे, अल्लाह की कसम, उस वक़्त अगर तू मेरे तलवार के नीचे आता, ये नहीं देखता था कि इन्हें मेरा बेटा अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन समझकर मेरी तलवार से एक झटके में तेरी गर्दन उड़ा डालता था। इसे बोलती इस्लाम। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, हजरत जिस्मानी अजियतों में शेब अबी तालिब के घाटी में 3 साल तक सहाबा को महसूर कर दिए। नबी को, सहाबा को 3 साल तक महसूर, बायकाट, बातचीत से बायकाट, हर चीज से बायकाट। वो 3 साल कैसा गुजारे? ना अनाज इनको कोई देने वाला, ना पानी कौन तो देने वाला, ना पैसे ले को गए तो राशन कौन तो देने वाला, कोई भी नहीं। कैसा बिताए होंगे वो 3 साल? 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी में। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। सहाबियात कुछ खाएंगी, बच्चों के लिए दूध आएगा। सहाबियात माएँ कुछ नहीं खाएंगी, बच्चों के लिए दूध कहाँ से आएगा? बच्चे रोते थे, चीख मार मार के रोते थे। शेब अबी तालिब की घाटी मासूम बच्चों के चीखने की आवाज से गूंज उठती थी। सहाबा कहते हैं हमारे पास खाना खाली हुआ, दरख्तों के पत्ते चबाकर हम जिंदगी गुजारे। जैसे बकरियां दरख्तों के पत्ते चबाते हैं, हमने दरख्तों के पत्ते चबाकर दिन गुजारे। हमको लेटरिन भी नहीं आता था, बाथरूम भी नहीं आता था, बकरियों के जैसे मेंढकियां हम लोग बाथरूम किया करते थे। और किसी को चमड़ा मिलता, अल्लाह की नेमत समझकर 8-8 दिन पानी में भिगो के चूसा करते थे। कौन बोल रही है? सहाबा इकराम की हालत। और दिन में हमको भूख की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से आसमान में, फिजा में धुआं नजर आता था, जबकि अल्लाह की कसम उस वक्त फिजा में कोई धुआं नहीं होता था। हमारी भूख की वजह से हमारी आंखों में वैसी गशी तारी होती थी। अल्लाह के नबी बद्दुआ करे, अल्लाह इन मक्के वालों पर वैसा कहत नाजिल कर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में 7 बरस तक तो कहत उतारा था। अल्लाह तो इनके ऊपर वो दिन दिखा। मक्के वालों पर 7 साल कहत टूटा था अल्लाह के नबी की बद्दुआ से। शेब अबी तालिब की घाटी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। अबू तालिब का इंतकाल
प्यारी बीवी खतीजतुल कुबरा का इंतकाल, बड़े बड़े सहाबा इसमें मारे गए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, हजरत जब इस्लाम के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती, अल्लाह के नबी ऐलान करते, कोई है इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाला? सहाबा अव्वल गज़वा खैबर के लिए ऐलान, हजरत अबू बकर सिद्दीक गज़वा तबूक, गज़वा खैबर का ऐलान, उमर बिन खत्ताब अपने आधे घर का सामान लाकर रख दिए, अबू बकर सिद्दीक अपने पूरे घर का सामान लाकर रख दिए। मस्जिद कुबा में बैठे हैं अबू बकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से आए और नबी को बोले, अल्लाह के नबी अबू बकर को सुनाइए, मेरा रब अबू बकर को सलाम सुनाता है, मेरा रब अबू बकर को सलाम सुनाता है। उस वक्त अबू बकर की क्या हालत थी? अबू बकर के पेट पर पत्थर बांधा है और अबू बकर के जिस्म पर एक मामूली चादर का टुकड़ा है जिसमें कांटा टाका लगाए बैठे हैं, गुलामों को आजाद कराने वाले अबू बकर। तारीखुल खुलफा अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं, इतने बड़े सखी अबू बकर सिद्दीक, इनकी हालत क्या? सारे घर का सामान अल्लाह के रास्ते में। खुबैब बिन अदी नाम के एक सहाबी को मक्के वाले पकड़ ले को गए, कैदी बना लिए और 3 दिन खाना पानी नहीं दिए, सर का जरा जरा देखो, जिंदा रखो, सूली पो चढ़ाए, फांसी पो, और इनको मारने के लिए खड़ा किए। बोले तुम्हारी जगह नबी होते तो अच्छा रहता था, नहीं सूझ रहे रंगा नहीं तुम्हें? अरे दुश्मनों, मेरी जगह, मेरी जान लेने के बदले, मेरी जान कुर्बान करने के बदले मेरे नबी में कांटा चुबाती, बोले तभी मुझे गवारा नहीं। बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या? तो है 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकात नमाज पढ़े खुबैब बिन अदी। क्या बेहतरीन नमाज थी जी वो, जिंदगी की आखिरी नमाज, खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज। उस वक्त मजमा में देखने वालों में एक सहाबी है जिनका नाम आमिर, सईद बिन आमिर अल जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सईद बिन आमिर अल जहनी अभी इस्लाम नहीं लाए, उस वक्त तमाशा देखने वालों में उन्हों भी हैं। 2 रकात नमाज पढ़े, बाद में उठ को बोले, मेरी जिंदगी में आखिरी नमाज है, मेरे दिल में तमन्ना आई, सर सजदे में रखी हूं, दिल में तमन्ना आ रही, अल्लाह ये तेरे लिए मेरे सजदे आखिरी है इस धरती पर, मेरे दिल में तमन्ना आई लंबे सजदे करूं, लेकिन तुम्हारे खुश होने के ख्याल से मैं छोटी नमाज पढ़ा। तो कहीं तुम ये ना बोलो खुबैब मौत के डर से कितने लंबे लंबे सजदे कर रहा, क्या लंबी लंबी नमाज पढ़ रहा? मैं मौत से नहीं डरा हूं, मेरे अल्लाह के लिए मेरी जान कुर्बान। खुबैब बिन अदी खड़े, मारने लगे इनको। खुबैब बिन अदी के मुंह से जब बद्दुआई कलमात निकले, अल्लाहुम्मा अहसाहुम अददा वख्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। अल्लाह इनमें से तमाम लोगों को चुन चुन कर गिन गिन कर तू शुमार कर ले। ऐ अल्लाह इनमें के हर एक को तू पकड़ पकड़ के कत्ल कर दे। अल्लाह एक को भी तू बाकी मत छोड़। सईद बिन आमिर अल जहनी जब इस्लाम कबूल करे, रातों को चीख मार के उठ के बैठ जाते थे और बोलते थे, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। क्यों? क्योंकि खुबैब बिन अदी को फांसी देते हुए लोगों को मारने वाले, तमाशा देखने वालों में उस वक्त मैं भी था। खुबैब बिन अदी की बद्दुआ सारे लोगों के लिए थी, वो मेरे लिए भी थी। अल्लाह मुझे डर लगता है छत फट ना जाए, तेरा अज़ाब ऊपर से ना आ जाए, जमीन फट ना जाए, सईद बिन आमिर अल जहनी जमीन में धंस ना जाए। अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे इस्लाम के बारे में उस वक्त मालूम नहीं था, मुझे बचा ले। कौन? सईद बिन आमिर अल जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाबा, वैसी कुर्बानी आज हमको देने की ज़रूरत। अल्लाह से दुआ है, मौला करीम हम सबको इस्लाम के लिए, चाहे माल की हो, जान की हो, वक्त की हो, अपनी ज़िंदगी की, अपनी ख्वाहिशात की हो, अपने ईमान की हो, हर चीज़ की कुर्बानी अव्वल नंबर पर देने जैसा मुजाहिद, अव्वल नंबर पर देने जैसा कामिल मोमिन, बाअमल मोमिन बनने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे ईमान में सहाबा जैसा ईमान का वलवला और जोश नसीब फरमाए। रिया व नमू से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम अल्लाह को राजी करने के लिए करने जैसा मोमिन बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।